पूरे देश में सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाका माना जाता है नई दिल्ली, क्योंकि यहीं पर देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद यहीं पर रहते हैं। और यहीं पर जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखकर हम सभी पत्रकार ये कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे। हुआ ये है कि शनिवार देर रात को यहाँ पर जब पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो न सिर्फ उनको रिपोर्टिंग से रोका गया बल्कि उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उन्हें ही घंटों थाने में बिठाए रखा, रात से लेकर सुबह तक थाने में बैठाए रखा। मेरे साथ कुलदीप हैं जो रोज़ाना स्पोक्समैन से हैं। कुलदीप, ये बताइए पहले तो कल रात आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कितने बजे गए थे? बिल्कुल जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋ ਆਈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਖੜੀ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ वहाँ पर खड़ी हुई है, कुछ और बंदे और आ गए वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ही ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ है। मेरे भी नक पे मुक्का मारेगा, ब्लड काफी। इन्हीं के साथ मारपीट हुई है। नाक पर जो है ये कट मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये चोट लगी हुई है नाक पर। ये एक्सरे भी हुआ है शायद आपका? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सरे भावें कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, खून निकला है? ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਠੋਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ये मैं एक बार हिंदी में समझा दूं कि ये पत्रकार हैं, ये वहाँ पे गए, पुलिस ने इन्हीं की चेकिंग करी, इन्हीं के नाम वाम सब लिखे। हाँ, मेरे साथी आपका नाम बताइए। प्रिंस मेरा नाम है, कॉरेस्पॉन्डेंट हूं मैं रोजाना स्पोक्समैन से। और हरियाणा, हाँ हरियाणा नंबर गाड़ी थी। और रूटीन जैसे हम घूम रहे थे, इन्फॉर्मेशन। आपकी हरियाणा नंबर थी? नहीं, हमारी तो पंजाब थी। जो दूसरी गाड़ी थी, अगर हमारी पंजाब है, अगर पुलिस ने वो सवाल उठाए कि पंजाब की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, हम हमारे पास तो कार्ड है, हम पीसीआर को चेकिंग करवाई। जैसे पूरी चेकिंग क्लियर हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कौन थे व्यक्ति, कैसे थे, कहाँ से आए थे? पुलिस के सामने ही मारना शुरू कर दिया? और आपका नाम वाम सब लिखा है पुलिस ने? जी जी, आई विटनेस मेरे ख्याल ईश्वर सिंह थे पुलिस की तरफ से। जी, उनकी आंखों के सामने मारना शुरू किया। और मैंने बोला कि मैंने कल मैं रोक ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? हमने बोला कि हल्ला ना हो, क्योंकि कई बार पत्रकारों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हल्ला कर देते हैं। हमने बोला कि पीसफुली आप करें। पर जब भी पूरी इंक्वायरी हुई, उनको पुलिस वालों को लगा कि इनके पास कुछ नहीं है, उन भीड़ को भी पता लगा इनके पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला इनको थाने लेके चलो। हमने ठीक है। तो ऐसे बात में उन्होंने छीना झपटी की, मेरे बैग पे उन्होंने पंच किया। एक लड़का था, मैंने देखा। मारपीट हुई? हाँ, सभी के साथ हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। तो और ये कौन सी जगह है?
जहाँ पे हुई है घटना, जो पीएम हाउस के बिल्कुल सामने, मेरे ख्याल से जगह का एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तो निकल रहे थे, हमें पता लगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। पीएम हाउस के सामने जो झुग्गी है वहीं पर थे क्या? झुग्गी ठीक में। है, तो फिर ये बीआर कैंप है, जो ये नाम नहीं ले पा रहे, बीआर कैंप है, ये प्रधानमंत्री निवास के ठीक सामने की झुग्गियां हैं जहाँ की ये घटना बता रहे हैं। आप बताइए। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू किया, तो पुलिस आई और पुलिस ने हमें ही राउंड अप किया कि तुम थाने चलो, और मैंने 2 पीसीआर को रोका, 2 पीसीआर, एक और थी पीसीआर, उन्हें भी बोला कि इनको रोकें, आप रोक क्यों नहीं रहे? वो कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जांच करेंगे। हमें थाने लेके जाया गया, राउंड अप किया, मेडिकल के लिए भेज दिया। इस समय में वो आरोपी कहाँ गए किसी को पता नहीं है। अगर हमने कंप्लेंट नहीं की है, अगर हमने बोला नहीं है, क्या पुलिस का फर्ज नहीं है कि चौथे स्तंभ के साथ मारपीट हो रही है कि हम राउंड अप करें उन्हें? और उस रोड पे, जिस रोड पे कितना बड़ा प्रोटोकॉल लगा हुआ है, कौन वो व्यक्ति थे, हरियाणा नंबर, हम तो पंजाब नंबर गाड़ी कहीं भी रोके, हमें कोई डर नहीं था। हम इसलिए पूरे देश की गाड़ी, कोई भी गाड़ी कहीं भी जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वो आपकी गाड़ी चेक कर ली, वो हमारी गाड़ी चेक होती है, चुनाव चल रहे हैं। हाँ, चेक की, हमने तो कुछ नहीं कहा, और हमने मेडिकल भी करवाया। अगर हमें कोई होता, हम हल्ला करते थाने में कि अल्कोहल है, कुछ है, हाँ, हमारे मेडिकल करवाए गए, कुछ नहीं मिला उसमें, फिर भी हमें थाने में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठाया रखा। ये ठीक है, पुलिस ने कोऑपरेट किया, पर थाने में जब मौके पर पीसीआर ने कुछ नहीं किया। पीसीआर की गलती है कि पीसीआर ने क्यों नहीं एक्शन लिया? 2 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी उनके पीछे लग सकती थी। अगर एक गाड़ी ने हमको रोकना है, उनके पीछे लग सकती थी, उनको राउंड अप किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। व्यक्ति कौन है, और इतना हाई सिक्योरिटी इलाका है, सीसीटीवी निकाली जा सकती है। अगर हम कंप्लेंट नहीं देंगे तो क्या पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी? तो तरह तरह के सवाल है। मारपीट, ये घटनाएं पहले भी होती रही है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के नहीं, कम से कम दिल्ली में ऐसे नहीं हुआ है, दिल्ली में कभी नहीं हुआ। मुल्क में मैंने, आप मेरी जानकारी वो करें, और इस मुल्क की नज़र ना 2 बार इस मुल्क की तब होती जब देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, और दूसरी बार जब बजट पेश होता है। तो बजट भी हमने कवर किया सुबह 7 बजे से लेके, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे जो प्रिंट में खबरें लगी हैं, हमारे टीवी सोशल पे खबरें हैं कि जैसे किस प्रकार से हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, फिर विधानसभा हलकाओं में क्या क्या सबका ग्राफ चल रहा है। तो फिर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की ये कौन है, कहाँ से आया, तो सरासर गलत। अगर गलत होते, अगर वो भागे तो हम भी भाग सकते थे, पर नहीं भागे, और आज आपके सामने भी खड़े हैं। तो जो भागा है, इसका मतलब भाई गलती उसकी है ना। आप तो पत्रकार हैं, आपने बजट कवर नहीं भी किया, तब भी तो आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। बजट से क्या लेना देना है? बजट का कोई लेना देना नहीं है, पर जो लोग ये बोलते हैं कि कहीं पंजाब से रखे, हम तो हर किसी का काम करेंगे। इस राजधानी में नज़र ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ हुआ ये था कि आपको जानकारी मिली कि वहां पर कुछ अवैध गतिविधि हो रही है, कुछ बांटा जा रहा है, इसलिए आप वहां पर गए थे। बिल्कुल। रात के कितने बजे थे? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 11 11:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। और पुलिस ने फिर कब उठाया आपको जब ये सब हो गया था? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मारपीट के बाद तुरंत उठा लिया था? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ। अच्छा, उसके बाद मेडिकल कराया? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हाँ, आप कुछ कहते हैं? इन्होंने भागकर जान बचाई अपनी। ये इस तरफ को भागे और मैं पीसीआर वालों की तरफ भागा कि पीसीआर जी आओ, आप हमें मार रहे हैं। तो पीसीआर कह रहे हम आ रहे हैं। जब वो आए तब तक वो फरार। और आप पता नहीं, पुलिस के सामने तो मारपीट हो ही रही है। नहीं, एक पीसीआर थी, दूसरी को बुला लेके गया। दूसरी एक से वो नहीं हो रहा था कंट्रोल। दूसरी पीसीआर बाहर खड़ी थी सड़क पे, उनको बुलाया कि आओ भाई, एक से नहीं हो रहा, तुम आओ। फिर वो आए, तब तक वो रफू चक्कर, फिर हमें थाने लेके। मारपीट तो पुलिस के सामने हुई है। बिल्कुल पुलिस सामने खड़ी हुई है, पुलिस वहां पे थी, पुलिस वहां पे थी। बिल्कुल, ये तो आप कितनी बार बोले कि उनके सामने हुआ वहां पे थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये राजधानी के अंदर प्रधानमंत्री घर के सामने वाली झुग्गियों के सामने ये घटना हुई है कि पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है। ये शिकायत कर रहे हैं, इन्हीं की सारी डिटेल ली जा रही है। इन्हीं को थाने में बैठा के रात भर रखा गया, सुबह इनको छोड़ा गया। और जिनके ऊपर ये आरोप था, ये शक था कि इनके पास कुछ गलत हो सकता है, वो जो हैं वहाँ से रफू चक्कर हो गए। उनको या तो वो निकाल दिया गया, ये तो इन पत्रकारों के बात से पता ही लग रहा है कि कैसे ये सब हुआ है। तो ये देश की राजधानी में पहली बार हुआ है, और जहाँ ये हुआ है ये नई दिल्ली विधानसभा है। ये वो विधानसभा है जिसके ऊपर सबकी नज़र लगी हुई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित खड़े हुए हैं। उसी क्षेत्र में ये सब हुआ है। इससे आप समझ जाइए कि नई दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। जो हो रहा है ये सब, ये पहली बार हो रहा है।
दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा स्वतंत्र हूँ।